Hello everybody, so welcome back to my channel Learning English with Yasvi. So today we are going to do my new Canvas textbook English at your fingertips, class 8. It is a course book and it is by Pearson. Okay, and today we are going to do part 2 of the first chapter because we have already completed with the part 1. So if you haven't watched part 1 yet, so the link is given below. So now let me start this video. So now let me give you the whole summarization of the part first so that you can just remember it, and then we will go on with the part 2 and so on. So first of all, we discussed in part first that there is a place. If you visit a place and you don't know the local language of there, so what and how will you communicate with the local people? Then we discussed that there are 700,000 villages in India, and Kritam was the tiniest one. Then here the stories of Munni. Munni was the last house in the fourth street beyond which stretched the field, and in his prosperous days, Munni had owned a flock of sheep and goats. He would sit on the pedestal of a clay statue of a horse while his cattle gazed around. So if you want this Hindi explanation and summarization more clearly, you can just go on with the part 1. I'm just giving you some important points summarized of the part 1. His fortune declined, and his flock of 40 sheep and goats had now come to 2 goats. So they were tied to the trunk of the drumstick tree, which grew in the front of the hut, and from which occasionally Muni would shake down drumsticks. So this morning he got 6, so he carried it to his wife, and then asked her to make beautiful, you can know, a snack from it, right? So what Muni's wife replied is that she replied that if you want, I can make make them boil and then add some salt, and you can then have it. But Muni wanted with sauce and craving them because he was craving them to chew with sauce. Okay, so his wife said some of the ingredients that he need to buy from the store, that is in the 3rd street, right? Then yeah, Munni was the last house in 4th street, so just remember that. And he need to go to 3rd street where was the store. So what her wife said was dal, chili, curry leaf, mustard, coriander, ginger oil, and 1 large potato. So she said that go out and get all this, and she repeated the list so that her husband don't forget it. But the shopkeeper paid no attention to him because this he also knew that he would not pay attention to him because he was in debt. So as expected, he did not give him anything. So he came home and told his wife about everything that what happened. So his wife said that leave me alone for some time, you just go out with your goats. And then Muni set out, and then he sat near the pedestal of the horse. Now here the description of horse was also given. The horse was nearly life-size, molded out of clay, baked one brightly colored, and reared its head proudly, prancing its forelegs in the air and flourishing its tail in a loop. Beside the horse stood a warrior into which synced with mouse cheek, bulging eyes, and aquiline nose. None in the village remembered the splendor of the horse, nor noticed its existence. Even Munni, who spent all his hours at the foot of the horse, but never bothered to look up. Then here I said that. So as I said in the part 1, that from here the story began that when Muni sat at the foot of the statue watching his goats, so a new sort of vehicle came down at him towards him with full speed. It was a yellow vehicle, but he was not able to describe. It looked like car and bus both. So then a red-faced foreigner driving it got down from there and stopped, and looking to the vehicle, he straightened to the man, that is Munni, and then looked at the dashboard and approached
इज़ देयर एनी गैस स्टेशन नियर बाय, आजू बाजू गैस का स्टेशन है या फिर मेरे को वेट करना पड़ेगा कोई दूसरी गाड़ी आए. सो ही सडनली लुक अप एट द क्लेयर्स एंड क्राइड मार्वेलियस. और सडनली उसका भी ध्यान गया कि उसका क्लेयर्स मस्त था, तो उसने बोला मार्वेलियस विथ. सो till here we have done in part 1. Let's start with the part 2 now. Without completing his sentence, Munni felt he should get up and run away and cursed his age. Though he tried, he could not easily extricate himself from his seat. And then there was also the problem of goats. He could not leave them behind. तो इधर अभी क्या हुआ कि उसका सेंटेंस ख़त्म हो इससे पहले मुन्नी ने सोचा चलो यहाँ से चलते हैं, और उसने फिर अपनी एज को कर्स किया, यानी कि श्राप दिया. वही उसकी एज की वजह से अभी वो दूसरी जगह जा भी नहीं पा रहा, और दूसरा रीज़न ये था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था, और उसकी जो गोट्स थी ना, उसके बिना वो कैसे जाता है घर, उसको पीछे अकेले भी तो नहीं छोड़ सकता गोट्स को. ओके, so the red-faced man wore khaki clothes. Khaki clothes evidently a policeman or a soldier. यानी कि हुआ एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग इधर क्या कि उसने खाकी क्लोथ्स पहने थे रेड फेस्ड फॉरेनर ने, जो पुलिसमैन या सोल्जर पहनते. तो इसको डर लगने लगा कि मैंने तो कोई क्राइम नहीं किया, फिर भी ये इधर आया है तो मे भी कुछ रीज़न होगा. पर उतने की कोशिश करने लगा, पर उसकी कोट्स एक प्रॉब्लम बन के रुक गई, वो बताया गया है. देन ही पेस्ड अराउंड द स्टैचू विथ हिज आइज फिक्स्ड ऑन इट. तो जो फॉरेनर था उसको हॉर्स अच्छा लग रहा था. सो मुन्नी सेट फ्रोजन फॉर अ वाइल एंड देन फिजिटेड एंड ट्राइड टू एज अवे. तो इधर उधर ऐसे ही बैठा रहा मुन्नी, और फिर धीरे धीरे थोड़ा मतलब आजू बाजू मतलब ऐसे खिसक के जाने का, रन अवे करने का मतलब प्लान सोच रहा था. नाउ द अदर मैन सडनली प्रेस्ड हिज पाम्स टूवर्ड्स इन अ सैल्यूट, स्माइल्ड एंड सेड नमस्ते, हाउ डू यू डू. तो फिर वो जो रेड फेस्ड फॉरेनर था उसने क्या किया, नमस्ते किया. किसको, मुन्नी को. At which Munni spoke the only English expression he had learned, yes, no. इसको सिर्फ मुन्नी को तमिल आती है, इंग्लिश नहीं आती. उसको सिर्फ 2 ही वर्ड्स आते हैं, येस या नो इंग्लिश के. तो फिर इसके ऊपर नमस्ते के ऊपर उसने येस या नो पे आंसर दिया. हैविंग एक्सॉस्टेड हिज इंग्लिश वॉक्यूबलरी ही स्टार्टेड इन तमिल. उसको इंग्लिश की वॉक्यूबलरी ज़्यादा नहीं पता थी, तो फिर उसने तमिल में अपना स्टार्ट कर दिया कि माई नेम इज़ मुन्नी, दिस 2 गोट्स आर माइन. तो बोलने लगा कि ये मेरा नाम मुन्नी है और ये 2 गोट्स जो हैं ये मेरी हैं. ओके. So the foreigner faithfully looked in the direction indicated by the Munni's finger, gazed for a while at the 2 goats with puzzled expression, said, I came from New York. He took out a wallet from his hip pocket and presented his card. यानी कि फिर पहले क्या किया, उसको देखने लगा, मतलब जो फॉरेनर को दिखाया, तो फॉरेनर समझे शायद ये गोट की तरफ इशारा कर रहा है. उसने भी गोट को देखा और उसके बाद पजल हो गया, मतलब थोड़ा कंफ्यूज था. उसके बाद उसने बोला देखो मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ, और फिर अपने पॉकेट में से अपना कार्ड निकाल के दिखाने लगा. ओके. Munni shrank away from the card. Perhaps he was trying to present a warrant and arrest him. तो उसको लग रहा था ये पुलिस वाला है या सोल्जर है जो मेरे को अरेस्ट करने आया है, पर वो तो खाली एक फॉरेनर था जो खाली पूछने चाह रहा था कि इधर कोई गैस स्टेशन है कि मेरे को कोई दूसरी गाड़ी के लिए रुकना पड़ेगा. तो उसने अपना जो कार्ड दिखाया तो उसको ऐसा लगा मुन्नी को कि वो कोई ऐसा चीज़ दिखा रहा है, उसके पास कुछ प्रूफ है और वो शायद उसको अरेस्ट कर देगा मुन्नी को. बिवेयर ऑफ खाकी, तो उसको इसकी वजह से लग रहा था क्योंकि उसने खाकी के कपड़े पहने थे. सो ही वेंट ऑन ऑल इन चेस्ट तमिल फॉर विच सर दैट वी ऑल नो नथिंग ऑफ द केस. तो फिर वो अपनी दूसरी स्टोरीज बताने लगा. उसको क्या लगा ये दूसरी चीज़ें अभी हो क्या रहा है इधर कन्वर्सेशन में, वो स्टोरीज बताता जा रहा है. वो जो रेड फेस फॉरेनर है वो हॉर्स को देख रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है, अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है. मुन्नी अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, तमिल में दे रहा है, दूसरी बातें स्टोरीज कर रहा है. तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बेसिकली हो रही है स्टोरी में. अभी वही पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग हमको पढ़नी है, और ये शायद 2-3 पेज की मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आज हम लोग शायद इस पार्ट में नहीं कवर कर पाएँ, तो शायद तीसरा पार्ट भी हो सकता है इस चैप्टर का. ठीक है. तो अभी जो ये जो है ना, हाँ मुन्नी, तो वो तमिल में ये सब चीज़ें बोलने लगा जो मैं अभी पढ़ रही हूँ. बिफोर गॉड सर, भगवान हु सीज एवरीथिंग, आई टेल यू सर दैट वी न्यू नथिंग ऑफ द केस. इफ द मदर वॉज कमिटेड, whosoever did it will not accept भगवान is all seeing. Don't ask me about it.
I know nothing. A body has been bound multi-layered and thrown under tamarind tree a few weeks before, giving rise to much gossip. The foreigner nodded his head and listened courteously through he understood nothing. Okay, so what happened here? वो बताने लगा कि सर एक मर्डर का केस हुआ था, फिर उसके जो बॉडी है ना उसको फिर ट्री के नीचे रख दिया गया था, और उस केस के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता है. उसके केस के बारे में काफ़ी गॉसिप हो चुकी है. तो फॉरेनर तो सिर्फ ऐसे हाँ में सर हिला रहा था, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि फॉरेनर्स कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों? इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, तो उसको ये कैसे समझ आएगा कि वो क्या बोल रहा है, राइट? इधर तो ये जो तमिल का है उसमें ट्रांसलेट करके हमको इंग्लिश में दिया है, पर अगर वो तमिल में बोल रहा था तो वो कैसे समझेगा, राइट? I am sure you know when this horse was made, said the red man and smiled intently. That means that उसको ऐसा लगा कि ये हॉर्स उसका है, तो उसके रिलेटेड सवाल पूछने लगा, और मुन्नी को लगा कि ये पुलिस वाला है जो मेरे को अरेस्ट करने वाला है, इसके लिए वो स्टोरीज बनाने लगा, राइट? तो वो इधर है पूरा कन्वर्सेशन. तो अभी ये हॉर्स के लिए पूछता है मुन्नी से कि आपको तो पता ही होगा नहीं हॉर्स किसने बनाया, क्या हुआ? रेडमैन पूछता है और फिर हंसता है. सो मुन्नी रिएक्टेड टू द रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर बाय स्माइलिंग हिमसेल्फ एंड प्लीडेड, गो अवे सर, आई नो नथिंग. फिर वो मुन्नी क्या बोलने लगा, आप यहाँ से जाइए सर, मेरे को इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता. तो रेडमैन इम्प्लोर्ड, प्लीज़ आई विल स्पीक स्लोली, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं धीरे धीरे बात करूँगा, आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझने की कोशिश करो. कैन यू इवन अंडरस्टैंड अ सिंपल वर्ड ऑफ इंग्लिश? क्या आपको एक वर्ड इंग्लिश का आता है? एवरीवन इन दिस कंट्री सीम्स टू नो इंग्लिश. मेरे को लग रहा है इस कंट्री में तो सभी को इंग्लिश पता ही होगी. आई हैव गॉट अलॉन्ग विथ इंग्लिश एवरीवेयर इन दिस कंट्री बट यू डोंट स्पीक इट. मैं तो जिधर भी गया सब लोग इंग्लिश तो स्पीक कर ही रहे थे, तो आप कैसे नहीं बोल रहे हो? सो मुन्नी मेड सम इंडिस्टिंक्ट साउंड इन हिज थ्रोट एंड shook his head. यानी कि साउंड बनाना, आपको मैं एक साउंड दिखाती हूँ. ऐसा करते हैं ना हम लोग, और फिर उसने अपना जो हेड है वो सुक किया, यानी कि हिलाया. Encouraged, the other went on explaining at the strand, uttering each syllable with care and deliberation. Presently he slided over and take a seat beside the old man, explaining, you see, last August we probably had the hottest summer in the history, and I was working in the shirt sleeves in my office on the 14th floor of the Empire State Building. इसका मतलब ये है कि ये फिर चालू करने लगा अपनी बातें. फिर रेड फेस्ड फॉरेनर बोल रहा है, इधर एक पिक्चर है आप देख सक रहे हैं, तो मैं इससे एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको, तो आपको ज़्यादा क्लियरली दिखाई भी देगा और एक्सप्लेनेशन में भी मज़ा आएगा. तो फिर वो रेड फेस्ड फॉरेनर बोलने लगा कि मैंने फुल स्लीव्स के कपड़े पहने थे, 14th फ्लोर पे मैं काम कर रहा था, तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग थी. सो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द पावर फेलियर. और वो बता रहा है कि पहले लास्ट अगस्त में बहुत गर्मी हुई थी, हिस्ट्री में भी ऐसी गर्मी नहीं हुई है, मतलब पहले ऐसी गर्मी नहीं हुई है. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द पावर फेलियर एंड देयर आई वॉज स्टक फॉर 4 hours, no elevator, no air conditioner, all the way in the train. I kept thinking, and the minute I reached home, I told my wife, Ruth, we will visit India this winter. It's time to look at the other civilizations. यानी कि फॉरेनर को जो इंडिया की हिस्ट्री के सिविलाइजेशन है वो पसंद है. ये येलो कलर की कार आप देख सक रहे हैं, ये रेड फॉरेनर है, ये मुन्नी है, और ये हॉर्स है. ठीक है, तो ये इसको हॉर्स अच्छा लग रहा है और इसको लग रहा है कि ये पुलिस वाला है, राइट? ये कन्फ्यूज़न हुआ है दोनों के बीच में. तो फिर ये रेड फेस्ड फॉरेनर बोलता है कि आपको पता था मैं 4 घंटे के लिए अटक गया था एलिवेटर में, पावर कंडीशनिंग हुआ था, पावर फेलियर हुआ था, एसी भी नहीं चल रही थी. फिर ट्रेन में मैं सोचता रहा बहुत देर तक ये बारे में. फिर जिस मिनट पे मैं रीच किया, मतलब जैसे ही पहुंचा घर, अब मैंने ये सब बातें अपनी वाइफ को बताई, रुथ को. हम लोगों ने सोचा कि हम लोग विंटर में इंडिया विज़िट करेंगे और दूसरे सिविलाइजेशंस को देखेंगे. तो ये बोलता है रेड फेस्ड फॉरेनर. So Munni looked reflective at the end of this long conversation and said rather feebly, yes, no, as a concession to the other language, and went on in Tamil. When I was this high, he indicated the foot I heard my uncle say. इधर आपको जैसे पता ही है कि मुन्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपनी लॉन्ग स्पीच में चलता गया तमिल में. When I was this high, he indicated the foot I heard my uncle say. तो इधर भी इतना ही दिया हुआ है, ज़्यादा नहीं दिया हुआ है स्पीच के बारे में. No one can tell what he was planning to say as the other interrupted him and
say to stage to ask, "Boy, what is the secret of your teeth? How old are you?" The old man forgot what had started to say and remarked. तो दोनों के बीच में मिसकन्वर्सेशन होने लगी, कभी ये बोलता तमिल में, कभी ये बोलता इंग्लिश में। फिर अभी इसने बीच में बोला, आप ओल्ड कितने हो, आपके टीथ अच्छे हैं। फिर से भूल गया ओल्ड मैन क्या बोल रहा था। फिर ओल्ड मैन ने अपना चालू कर दिया, ओल्ड मैन फॉरगॉट व्हाट ही स्टार्टेड टू से, मतलब उसको क्या बोलना था वो भूल गया। समटाइम वी टू लूज अवर कैटल, जैकल्स और चीता में कैरी देम ऑफ, बट समटाइम्स theft from over in the next village and then we will not know who has done it। तो वो उसका ही मर्डरर की बात कर रहा है कि हम लोग भी इधर उधर लेके जाते हैं चीता ये लोगों को, पर बाजू वाले नेक्स्ट विलेज में एक थीफ है, वो ये सब चीज़ें करता है। When he is caught, अभी वो सेट कॉट है, मतलब उसको पकड़ लिया गया। He gestured with his hand a perfect mincing of meat. Okay, so the American watched his hand intently and say, "I know what you mean, chop something." तो वो जैसे बातें कर रहा था ना इशारों में, तो उसको लगा कि आप चॉपिंग की बात कर रहे हो, कटिंग की बात कर रहे हो, ऐसा लगा रेड फेस्ड फॉरेनर को। ठीक है, मे बी आई एम होल्डिंग यू अप एंड यू वॉन्ट टू चॉप वुड, वेयर इज़ योर एक्स। आपको वुड कट करना है, आपकी एक्स किधर है, आपकी कुल्हाड़ी किधर है, हैंड इट टू मी एंड शो मी वॉट टू चॉप। मैं आपको हेल्प कर लेता हूँ चॉप करने में। आई डू एन्जॉय इट, मेरे को भी मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में। यू नो, just a hobby, we get lot of driftwood along the backwater near my house and on Sundays I do nothing but chop wood for the fireplace। यानी कि फॉरेनर के घर के इधर वुड मिलता है तो वो संडे को बस यही करता है और फायरप्लेस बनाता है, वो बता रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, सो वी completed this page। So Munni felt totally confused but decided the best thing would be to make attempt to get away from this place। मुन्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, तो उसने तो सोच लिया कि शायद मैं इधर से ही निकल जाता हूँ, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा धीरे धीरे बातों में। सो ही